बुक में लिखा cos inverse n square minus 1 by n square plus 1. चलो very good. Two vectors a bar and b bar having equal magnitude. If magnitude of a bar plus b bar is equal to n times the magnitude of a bar minus b bar, then angle between them is how much? क्या बोला प्रॉब्लम में देखो, mod of your a bar plus b bar is equals to n times of your mod of your a bar minus of your b bar. Okay na? So this will be equal to how much for me? Under root of your a square plus b square plus 2ab into your cos theta is equals to your n into this will be your under root of your a square plus b square minus 2ab into your cos theta. ठीक है ना? Yes sir. ठीक है. So if mod a and mod b is equals to same, क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में देखो, two vectors a and b have equal magnitudes. That means mod of your a is equals to mod of your b is equals to a, that is nothing but b, that is equals to मान के चलो कुछ x ले लेते हैं, isn't it? So this will become for me how much right now? So this one is nothing but a square plus b square plus 2ab into cos theta is equals to n square into a square plus b square minus 2ab into your cos theta. Can I write like this? So Yes sir. x square plus x square plus 2 into x square into cos theta is equals to your n square. This is your x square plus x square minus 2 into x square into your cos theta. ठीक है ना? So this will become right now how much for me? 2 into your x square plus 2 into your x square into your cos theta is equals to your n square into 2 into x square minus 2 into x square into your cos theta. In this one I can take 2x square common, 2x square into 1 plus of your cos theta is equals to n square into in this one also 2x square common into 1 minus of your cos theta. होता है ना? Yes sir. So this cos theta if I am taking on the same side right now, तो कितना बन जाएगा, तो कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या इसमें? Yes sir. 2x square cancel हो गया, तो 1 plus of your cos theta is equals to n square minus n square into your cos theta. ऐसे लिख सकता हूँ? Yes. So all the cos theta terms मैं एक साइड ले लूँ, तो क्या हो जाएगा देखो. So if I take this inside on this one, this will become for me 1 plus of your n square into cos theta बन जाएगा ये. So that is equals to n square minus 1. बराबर है? Yes sir. So cos theta is equals to how much for me? N square minus 1 divided by your n square plus 1 लिख सकता हूँ. Yes. ठीक है ना? So theta value is equal to how much for me? Theta is equals to your cos inverse of n square minus 1 divided by n square plus 1. So this is your answer. निकला सभी को? Yes sir. बात समझ में आई? Yes. सिर्फ सिंप्लीफिकेशन था, बाकी का सब कंडीशन दे रखा था, प्रॉब्लम है बेसिकली उसके हिसाब से करते जाना, ज्यादा कुछ नहीं है बेसिकली. ठीक है ना? Yes sir. चलो क्वेश्चन दे बेटा, जल्दी करने की कोशिश करो. ए फोर्स
a force 3 Newton is acting along the northeast direction, along the northeast, and another force 4 Newton, another force 4 Newton is acting along the northwest direction. Find the angle made by resultant, angle made by the resultant force, made by the resultant force with north. चलो करो, कितने जने कर सकते हैं देखो एक बार. Force of your 4 Newton, how much, sorry, 3 Newton is acting along your northeast direction. Directions निकालने आता है ना सभी को, भूल गए? ईस्ट, ये वेस्ट, Yes, sir. ये साउथ. नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या? समवेयर हियर. नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या बोला मैंने? ईस्ट पे बैठ के नॉर्थ को जाना है. कितने एंगल? नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 degree. 5, कुछ भी नहीं दिया तो 45. ये कितना है? 3 न्यूटन. उसके बाद अनदर फोर्स 4 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग नॉर्थ ऑफ वेस्ट. तो क्या करना है? नॉर्थ ऑफ योर वेस्ट मतलब ये कितना है? 4 न्यूटन. वेस्ट पे बैठ के 4 न्यूटन नॉर्थ के जाना है. दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 45 डिग्रीज. ठीक है ना? यस सर. तो अब इसको रिजॉल्व कर लो. 3 को अगर मैं एक्स एक्सिस में रिजॉल्व करूं तो ये बना कितना? 3 इंटू कॉस 45, और ये बना कितना मेरे पास? 3 इंटू साइन 45. बना सभी को? जहां पर थीटा रहता है वहां पर कॉस थीटा आता ना बेटा? आया? यस सर. 4 न्यूटन की भी रिजॉल्व करो. 4 न्यूटन में एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 cos theta. इस पे आएगा तो यहाँ 4 cos 4 sin 45. दिस इज तो अलोंग एक्स एक्सिस निकालो. पूरे फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस निकाल रहा हूं. सो एफ एक्स बार इज इक्वल्स टू, बताओ क्या क्या हो जाएगा? 3 इंटू कॉस 45 डिग्रीज plus माइनस ना minus. टू कॉस 45 डिग्रीज. ठीक है ना? Yes, sir. तो कितना बना? 3 minus 4 is how much? -1 minus cos 45 degrees बना. Yes, sir. So that will be equal to -1 by √2. यस. So along y-axis अगर करना है, along y-axis बताओ, along y-axis क्या हो जाएगा? Fy is equals to, y में क्या क्या है देखो? 3 इंटू साइन 45 डिग्रीज ऊपर है और 4 साइन 45 डिग्रीज भी ऊपर ही है. तो क्या हो गया? 3 प्लस 4 इज नथिंग बट 7 45 डिग्रीज. यानी ये बना मेरे पास 7 बाई √2. बताइए. यस. चलो अब डायग्राम बताओ. एफ वाई ये हो गया, ये कितना हो गया? दिस इज एफ वाई पॉजिटिव है तो 7 बाई √2. एफ एक्स क्या है? नेगेटिव, यानी इस डायरेक्शन. तो यहां पर आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना मेरे पास? 1 बाई √2. माइनस साइन लिख लिया मैंने ऑलरेडी यहां पर, तो डायरेक्शन चेंज कर दिया. ठीक है ना? तो इसका रिजल्टेंट ऐसा निकलेगा. तो ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, दैट इज नथिंग बट एफ. और ये फर्स्ट वन से वर्टिकल से मेक कर रहा है एंगल थीटा. ठीक है? ठीक है. Yes, sir. देन द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स विद नॉर्थ बोला है प्रॉब्लम में, उसलिए मैं थीटा ऊपर ले रहा हूं बिकॉज दिस वन इज योर नॉर्थ. ठीक है ना? Yes, sir. चलो tan थीटा निकालो. tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ वाई फ्रॉम द फिगर. एफ एक्स कितना है? एफ एक्स इज 1. -1. माइनस लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, डायरेक्शन है ना. अच्छा. 7 बाई √2. तो कितना बनेगा? 1/7. 1/7.
बना सभी को? Yes, sir. तो एंगल की theta is equals to how much for me? Theta is equals to tan inverse of 1/7. The resultant force makes an angle of how much for me? Tan inverse of 1/7. With what direction? With north. This is your answer. बना सभी को? निकला बेटा? Everyone is clear? Yes, sir. Sure. Question number. Find the resultant. Find the resultant of three vectors shown in figure. ठीक है, डायग्राम ऐसा दिया रखा है। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और यहाँ से यहाँ तक है एक फोर्स, फिर यहाँ से यहाँ तक है एक फोर्स, फिर यहाँ से यहाँ तक है और एक फोर्स. This one is 3 meters, sorry. So this one is your 3 meters. This one is your 1 meter. This is making here angle of 45 degrees. And ये हो गया 5√2 meters. चलो करो जल्दी से. Find the resultant of three forces. What are the three forces, beta? 5√2 is one force, 1 meter is one force, 3 meter is another force. पहले क्या करना है? पहले दो. ट्राई करो. कभी भी कोई वेक्टर एंगल बना रहा है तो पहले रिजॉल्व कर लेना. √2 को रिजॉल्व करो एक्स एक्सिस में. तो ये कितना बनेगा? 5√2 cos 45 डिग्रीज, और यहाँ क्या बनेगा? 5√2 sin 45 डिग्रीज. पूरे एक्स कॉम्पोनेंट्स लिखो अभी. ऑल एक्स कॉम्पोनेंट्स क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स में क्या क्या है देखो. 5 into root cos 45 डिग्री से प्लस 1 मीटर भी है, और कुछ है क्या एक्स एक्सिस में? नो. नहीं. तो ये कितना बना है? 5 into √2 cos 45 1/√2. 1/√2. तो ये रूट चले जाएगा. 5 + 1 तो 6. कितना बना? 6 meters along x axis. समझ में आया लिखना कैसे लिखना है? Yes, sir. along y axis भी लिखो अभी. all y 5√2 components लिखना है अभी. all y components मतलब y is equals to 5√2 into sin 45 degrees plus 3 meters. 3 meters. So यानी this one is 5 into √2 cos 45 1/√2 plus 3. ये चले गया. So it is 5 plus 3. ये कितना हुआ? 8. 8. तो मेरे पास x axis और y axis आ गया. Yes. x axis कितना आया? 6. y axis कितना आया? 8. 8. तो रिजल्ट आएगा, ये कुछ एंगल बनाएगा थीटा. तो रिजल्टेंट बताओ. r इज इक्वल टू कैसे लिख सकता हूँ? √(x² + y² लिख सकता हूँ. यस सर.
So that is equals to under root of 6 square plus 8 square. 6 6 8 8 64. तो ये कितना हुआ रूट 100 यानी 10 मीटर्स. रिजल्टेंट कितना आ गया 10 मीटर्स. एंगल बता सकता है कोई? tan theta is equals to vertical component by horizontal component. vertical component कितना है 8, horizontal component कितना है 6, यानी कितना हो जाएगा 4/3, यानी theta is equals to how much for me? Tan inverse of your 4/3. So this is the angle made. हो गया? Yes, sir. समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes. Sure. Come on, try to do this question paper on your own, beta. Take a minute time and try to do. A particle moves 30 meter north, 30 meter north, then 20 meter east, and finally 30 root 2 meter southwest. So find the displacement. Find the displacement of the particle. Find the displacement of the particle. चलो जल्दी से करके बताओ. कल मैं आप लोग को थोड़े असाइनमेंट्स भेजा था, मिले? नहीं सर. अरे ग्रुप में डाला था ना मैं प्रॉब्लम्स करने के लिए, स्क्रीनशॉट्स लेके. जी सर. Yes, sir. स्क्रीनशॉट्स लेके भेजा था मैं थोड़े बुक में से, और मिल कर लेते होंगे ना बैठ के बोल के. नहीं करे आप लोग? बोलना आंसर इसका जल्दी. डायग्राम ड्रॉ करो पहले. Along with the direction is important for me. 10 meters from west. Very good. One student has given the answer. Muhammad. चलो डायरेक्शन देखो बेटा जल्दी से. पहले डायरेक्शंस ड्रॉ कर लो. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. Now how the body is going? First one. 30 meters north. Okay, particle moves 30 meters north. So here it is 30 meters. Then 20 meters east from here only immediately. This is 20 meters east. Then finally 30 root 2 meters in southwest. यानी इस डायरेक्शन. साउथवेस्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक आता. ठीक है ना? दिस वन इज 30 root 2 मीटर. एंगल कहां पर लोगे? साउथ वेस्ट मतलब सिट ऑन द वेस्ट एंड गो टू द साउथ. इसकी एंगल है 45 डिग्रीज. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Nas Khan also has given me the answer 10 meters west. Very good. चलो जल्दी से रिजॉल्व कर लो. अभी किसके रिजॉल्व कर सकते हैं? कैन रिजॉल्व दिस वन. दैट वन इज 30 root 2 into cos 45 in this direction, and ये हो गया 30 into root 2 into sin 45 degrees. Now take all the x components.
x component is equals to along x axis is what first me 20 minus this one is nothing but 30 into root 2 cos 45. So that is 20 minus 30 into root 2 cos 45 is 1 by root 2. This one gets cancelled. So 30 minus 20 minus 30 is nothing but how much for me? Minus 10 meters. Then take all the y components. Y is equals to along y axis what I am having 30 meters minus this one is a 30 root 2 into sine 45. So that will become for me 30 minus 30 into root 2 into sine 45 is 1 by root 2. Root 2 gets cancelled. So y component is how much for me? 0. So x component I got how much I got? Minus 10. Minus 10 means what? Yeah, this will be plus. This will be minus. If your answer is your minus means this is in which direction? West direction. So that means displacement will be equal to how much for me? 10 meters along which direction? West direction. Along your west direction. Clear है? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. सर आप प्रॉब्लम्स कौन सा ग्रुप में भेजे सर? जो फर्स्ट ईयर का ग्रुप है ना उसी में भेजा था बेटा. नहीं है मिले? नहीं मिले सर, हम फर्स्ट ईयर के ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में है आप? यस सर. मैं हूँ ग्रुप में. क्या है कि सर चेक कर दूं? चलो राइट दिस क्वेश्चन बेटा. Two vectors of magnitudes 4 and 6 are acting through a point. Stop. If the magnitude of the resultant is capital R. First option. 4 is lesser than R. R is lesser than 6. Second option. 4 is lesser than R. R is lesser than 10. Third option. 2 is lesser than your R. R is lesser than of your 10. Fourth option. 2 greater than or equal to R. R greater than or equal to 10. बताओ कौन सा ऑप्शन हो सकता है? Two vectors of magnitude 4 and 6 are acting through a point if the magnitude of the resultant is R. बताओ. Annas Khan has given me the answer 3 बोल के दिए. मतलब क्या? थर्ड ऑप्शन. ठीक है. ये दो का रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा? आर मैक्स कितना हो सकता है? 4 + 6 10 हो सकता है. और मिनिमम कितना हो सकता है? 6 - 4 यानी 2. तो मिनिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है. तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा? थर्ड ऑप्शन ही मैच करेगा. है कि नहीं? मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकती है. क्या फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है क्या आंसर आपका? नो. सेकंड ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है. थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में होना चाहिए. फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला? 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R बोला है. एंड R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 10 तो नहीं हो सकता है ना. तो मैक्सिमम 10 हो सकती है, मिनिमम 2 हो सकता है. आंसर आपका 2 और 10 के बीच में ही होना चाहिए. ठीक है ना? यस सर. इसका भी आंसर बता दो जल्दी से. बेसिकली फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ, यहां से मान के चलो, इफ ए यूनिट वेक्टर is represented
is represented by 0.5 I cap plus 0.8 J cap plus C K cap. Then the value of C is बताओ जल्दी से. I'll give the options. First option is 1, second option is root 0.11, third option is root 0.01, and fourth option is root 0.39. करके बताओ जल्दी. If a unit vector is represented by 0.5 I cap plus 0.8 J cap plus C K cap, मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड निकालो पहले. इसका मैग्नीट्यूड क्या है? S is equals to अंडर रूट ऑफ योर 0.5 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 0.8 का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. और इसका वैल्यू कितनी है? 1 के बराबर है. Anyone has given me the answers? Let me check. Second option is the answer. Second option is the answer. Okay, let me see. Magnitude कितना है? 1, isn't it? So कितना आ रहा है देखो ये. A unit vector is represented by unit vector मतलब this is 1, that is equals to under root of this is 0.5 whole square यानी कितना 0.25 0.8 8 is 64 यानी 0.64 whole square 64 plus of your this one यानी कितना हो जाएगा ये. तो ये हो जाएगा multiply directly. So C square will be equal to कहाँ चले गए यार. अगर किसी को दो बच्चे आंसर दिए मुझे. So can I write this one as of your C square is equals to 0.89 25 plus 64. Yes, sir. तो C की वैल्यू कितनी बनी? 0.11. 0.11. ठीक है. सेकंड ऑप्शन दे रखा है आंसर या 0.11. क्लियर है सभी को? Yes, sir. If a vector a bar makes angles alpha, beta and gamma respectively with the x, y and z axis, then sine square alpha plus sine square beta plus sine square gamma is equals to how much? Option is 0, second option is 1, third option is 2 and fourth option is 3. चलो ट्राई करो जल्दी से. If a vector a bar makes an angle alpha, beta and gamma respectively with the x-axis, y-axis and z-axis, then sine square alpha plus sine square beta plus sine square gamma is equals to your how much? Option 3, 2. कैसा बेटा?
करना जल्दी। ऑप्शन 3 से कैसा? And 3. वो cos स्क्वायर करे तीनों का तो 1 होता सर, फिर क्या? उसको cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos 1 होता तो cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख के कर दे। वेरी गुड। और कोई? डायरेक्शन क्वेश्चंस में आप लोग के पास फॉर्मूला है? हो गया? दे रहे हैं, देखें। ऑप्शन 3 सेकंड ऑप्शन। ओके, डायरेक्शन क्वेश्चंस क्या है बेटा मेरे पास? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। डायरेक्शन कोसाइंस है कि नहीं? तो वी आल्सो नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो क्या मैं cos स्क्वायर थीटा कैसे लिख सकता हूँ? 1 माइनस ऑफ योर sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यस सर। ये cos स्क्वायर अल्फा कैसा आ गया देखो मुझे। cos अल्फा इज इक्वल्स टू योर x बाय मॉड ये लिखोगे ना, यस isn't it? cos gamma is beta is equals to ay by mod मोड है। cos beta is equals to cos gamma is equals to az by mod a, मोड है। isn't it? अगर इसको स्क्वायर कर लो तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 आ रहा मेरे पास बेसिकली, यस isn't it? तो ये बना मेरे पास 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। यानी sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि एक प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा उधर चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा? सो दैट विल बी द ऑप्शन। क्लियर है? यस सर। अच्छा, if the sum of two unit vectors is a unit vector, if the sum of two unit vectors is a unit vector, 10% है, चाबी भी नहीं। okay, unit vector, the magnitude of difference is the magnitude of अरे यूट्यूब चैनल दिखा ना। हाँ, यूट्यूब में डाल से देखता हूँ। अब जल्दी में कर, हाँ? the sum of two unit vectors is a unit vector, the magnitude of the difference is how much? जल्दी बताओ। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, √2, सेकंड ऑप्शन इज √3, थर्ड ऑप्शन इज 1 by √2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज √5। जल्दी करो। If the sum of two unit vectors is a unit vector, sum of two unit vectors is a unit vector, the magnitude of difference is how much? वो लोग आप बोले। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स मतलब क्या? ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू रिजल्टेंट निकलेगा। कोई बच्चा आंसर दे रहा है, √3, वेरी गुड। मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार क्या है बेटा? अंडर रूट ऑफ ए वन
a square plus b square plus 2ab into cos theta is equals to resultant r bar. Yani I can write this one as a square plus b square plus 2ab into cos theta is equals to r square. इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या है मेरे पास, यूनिट वेक्टर है, यानी a is equals to 1, b is also 1 and r is also equal to 1. तो ये हो गया मेरे पास कितना, 1 square is 1 plus 2 into your cos theta is equals to 1. ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1 plus 1 is 2 plus 2 into cos theta is equals to 1. क्लियर है? Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन, 1 plus of your cos theta is equals to 1. ठीक है, 1 plus cos theta is equals to how much for me, 1 by 2. यानी cos theta is equals to how much for me, 1 by 2 minus 1, यानी कि minus 1 by 2. minus 1 by 2 मतलब कितना, theta is equals to 120 degrees. यानी ये हो गया वेक्टर a बार और ये हो गया वेक्टर b बार, दोनों के बीच में एंगल कितनी है, 120 डिग्रीज. √3 आंसर मोहम्मद उस्मान खान, मुस्तफा खान has given me the answer. चलो a बार एंड b बार दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्रीज हो गई. डिफरेंस यानी r बार इज इक्वल्स टू a बार माइनस b बार, that is under root of your a square plus b square minus 2ab into your cos theta, that is equals to under root of a square कितना है 1 plus b square is also 1 minus 2 1 into cos 60. थीटा वैल्यू कितना है, cos 60 मतलब कितना, 1 by 2. कितना, 1 by 2. 1 by 2. तो ये निकल गया मेरे पास, a2 चलेगा, है ना. Yes sir. डिफरेंस पूछ रहा है ना, a बार माइनस ऑफ योर b बार, a एंड b के बीच में एंगल कितनी है, अरे थीटा इज एंगल बिटवीन a बार एंड b बार ना, 120 डिग्री ही होगी, माइनस होगा ये, थीटा 120 डिग्री है ना बेटा. हाँ. सो cos 120 इज minus 1 by 2, माइनस माइनस मतलब ये प्लस हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये कितना बना, √3. थीटा 180 डिग्री से 120 डिग्री है ना बेटा, 60 थोड़ी है. Yes sir. That is 1. So √3 is your answer. क्लियर है सभी को? Yes sir. Yes, sir. और बहुत प्रॉब्लम्स करना है बेटा, और सामने सामने. Yes, sir. चलो ये ट्राई करो एक बार. फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ three vectors वो a बार कामा वो b बार and वो c बार shown in figure. Radius of circle is r. Radius of circle is capital R. तो shapes ले रहा हूं. डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ. से एक सर्किल है, ठीक है. यहाँ से एक वेक्टर है वो टू a बार, यहाँ से एक वेक्टर है वो टू b बार, और यहाँ से एक वेक्टर है वो टू c बार, और इन दोनों के बीच में एंगल है 45 डिग्रीज. ये भी हो गई मेरे पास 45 डिग्रीज एंगल, ठीक है. सो ऑप्शंस दे रखा है इसका, फर्स्ट वन इज 2r,
second option is r into 1 plus root 2 और थर्ड वन इज रूट 2 इंटू आर और फोर्थ ऑप्शन है r इंटू रूट 2 माइनस 1। चलो जल्दी से करो। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स वो a वो b and वो c shown in the figure. Radius of the circle is given as of r. हो गया? चलो वेक्टर्स को लिख लो बेटा इंडिविजुअली। वो टू ए वेक्टर इस तरह से, इसके बाद वो टू बी वेक्टर इस तरह से है और ये एंगल बना रहा है कितना 45 डिग्रीज विद एक्स एक्सिस एंड देन वो टू सी वेक्टर इस तरह से। सबको ऐड करना है बस। दो स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं ऑप्शन टू ऑप्शन टू ऑप्शन टू ऑप्शन टू आ रहा है। चलो देखते हैं, इसको रिजॉल्व कर लो जल्दी से। दिस विल बिकम फॉर मी वो टू बी इज नथिंग बट व्हाट आर, ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये हो जाएगा मेरे पास r इंटू कॉस 45 और वर्टिकल भी अगर ले लोगे तो कितना आ जाएगा r इंटू और sin 45। तो पूरे x एक्सिस के ले लो पहले। x एक्सिस इज इक्वल्स टू वो टू ए आर बार प्लस r इंटू कॉस 45, यानी ये हो गया r इंटू 1 प्लस 1 बाई रूट 2। उसी तरह से y ले लो, y में वो टू सी है, वो टू सी क्या है r है प्लस r इंटू साइन 45 है, तो ये हो गया r इंटू 1 प्लस 1 बाई रूट 2 है ये भी। सो x एक्सिस इस तरह से है, y एक्सिस इस तरह से है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा निकलेगा विद सर्टेन एंगल थीटा। तो रिजल्टेंट कैसा निकालोगे, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर x वैल्यू क्या है r इंटू 1 प्लस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस दिस वन इज ऑल्सो r इंटू 1 प्लस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। दोनों सेम है ना बेटा, तो कितना आ जाएगा 2 रूट 2 ना। एक्चुअली अगर एक्स एक्स सेम होते तो आप कैसे लिखते, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता तो आप कैसे लिख सकते इससे अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब कैसा होता रूट 2 इंटू एक्स होता। yes तो क्या मैं सीधा सीधा यहाँ पर रूट 2 इंटू एक्स की वैल्यू डाल दूं, yes की वैल्यू क्या है मेरे पास r इंटू 1 प्लस 1 बाई रूट 2। 1 बाई रूट 2 को अगर अंदर ले लूं तो क्या बनेगा रूट 2 प्लस 1 इंटू आर into r ठीक है ना? option Which option? Second option. second option So how many students has given me the answer? Abdul Muqeet, Usman Khan, Murtuza Khan. चलो वेरी गुड। बात समझ में सभी को? yes sir प्रॉब्लम्स करना नहीं आ रहा अभी।
क्या हुआ? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Come on, try to do this question. The angle between the vectors a bar and b bar, the angle between the vectors a bar and b bar is theta. First off, the value of triple product, the value of triple product of a bar dot b bar cross a bar is, I'll give the options, a square b, second option is 0, third option is a square b into your sin theta, and fourth one is a square b into your cos theta. चलो जल्दी करो. The angle between the vectors a bar and b bar is how much? Theta. The value of triple vector a bar and b bar is how much? क्या हुआ बेटा? बी बार क्रॉस ए बार में तो कैसे लिखोगे? दिस इज बी बार एंड दिस इज योर ए बार, बी टू ए जा रहे तो इसका रिजल्टेंट ऐसा आएगा ना. दिस वन इज व्हाट फॉर मी, बी बार क्रॉस ए बार. तो क्या बी बार क्रॉस ए बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार? Yes. Theta 9. थीटा कितना हो 0 जाएगा? आ जाता. 0 आ जाता. बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार, क्या फॉर्मूला क्या है अपने पास? मॉड ए मॉड ऑफ योर बी बार क्रॉस ए बार इनटू cos 90. 90. 0. 0 तो कितना हो जाएगा आंसर? 0. Second out. Yes, sir. ऑप्शन 2 अन्नास खान, वेरी गुड. बस समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे वाले प्रॉब्लम्स हैं. यू नीड टू डू अनदर 100 प्रॉब्लम्स इन वेक्टर्स. 100 प्रॉब्लम्स इन वेक्टर्स में आप लोग को अपनी तरफ से करना है. ये पूरे प्रॉब्लम्स आप खत्म करने के बाद हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे. और इसके अंदर हम लोग पहले 2010 से लेके 2019 के जितने भी वेक्टर्स क्वेश्चंस है, बोथ जेई मेंस के और नीट के जो लेवल के क्वेश्चंस है, वो हम लोग को पहले खत्म करना है. तो अपने को क्लैरिटी आती है कि कैसे क्वेश्चंस वेक्टर में अगर पूछे गए हैं तो कैसे पूछे जा रहे हैं, या मेरे रेंज में है या नहीं है, मुझे करने आएगा कि नहीं आएगा. अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लूं तो क्या मैं ऐसे वाले क्वेश्चंस को टैकल कर सकता हूं 2009 किसमें? आप एग्जाम को कब बैठोगे? नीट का एग्जाम कब दोगे आप? 22. 22. तो हम लोग को करना क्या है? 100 क्वेश्चंस आप लोग को करना है. मैं कल ऑलरेडी आप लोग को एक 30-40 क्वेश्चंस आपको भेजा हूं विद सॉल्यूशंस. अगर किसी के पास है तो आप लोग अपने आप में शेयर कर लो एंड ट्राई टू डू ऑल दी प्रॉब्लम्स बाय कीपिंग दैट. अगर किसी के पास प्रिंटर है तो प्रिंट आउट निकाल लो. अगर प्रिंट आउट नहीं है तो व्हाट्सएप पे कर लेके कहीं बाहर जाके उसका प्रिंट आउट निकाल लेके उस क्वेश्चन को रख लेके पूरे क्वेश्चन करो. वो भी नहीं होता बोले तो क्वेश्चन और आंसर करके करना है. बट मुझे पूरे क्वेश्चंस आप लोग के नोटबुक में देखना है. क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, अगर प्रिंट आउट निकल गया तो क्वेश्चन नंबर रख दो और उसके वर्किंग करते चले जाओ. तो आप क्या करोगे, आज में आप जो भी आप नोट्स रख रहे हो ना, उसके ऊपर एक प्रॉब्लम्स इन वेक्टर्स बोल के हेडिंग करके 1 to 100 प्रॉब्लम्स करना है. मुझे 1 to 100 प्रॉब्लम्स करना है. अगर ये टारगेट हो गया तो उसके बाद बोलो तो मैं आपको दूसरा चैप्टर स्टार्ट करता हूँ. ये 1 to 100 का क्वेश्चंस आप कितने दिन में करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है. 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में, उसके हिसाब से मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करता हूँ.
नहीं हुआ अगर बोल के एक बच्चा भी बोला तो मैं उस दिन क्लास नहीं लूंगा, आई विल बी ओनली डिस्कसिंग अगेन द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बात समझ में Yes, आई? तो कल तक 1 to 100 कल संडे ही है, एक कल 30-40 प्रॉब्लम्स आराम से हो जाते मंडे तक की क्लास तक, और एक 30-40 यानी 80 से लेकर 100 प्रॉब्लम्स आप मंडे के क्लास तक खत्म कर सकते हो बेसिकली। और मेरे पास कुछ से वेक्टर्स के थोड़े क्वेश्चंस भेजूंगा विद सॉल्यूशंस, वो आप लोग खरीद लो। कोई बुक्स है आप लोग के पास? कॉलेज मटेरियल है, फोकस की मटेरियल है, अच्छी वर्मा है और कॉलेज का। कॉलेज का भी मटेरियल है? यस सर, कॉलेज का कौन सा फोकस का है? फोकस का फोकस का वेक्टर्स का पॉइंट है ना, उसमें चैप्टर है। है सर। हाँ, तो वेक्टर्स का निकल के उसका पूरा असाइनमेंट खत्म कर दो। ओके सर। ठीक है, वेक्टर्स का पूरा फोकस मटेरियल में का एक एक क्वेश्चन विद सॉल्व एग्जांपल्स हो जाना। कल के दिन मुझे वेक्टर्स में एक क्वेश्चन नहीं आया बोल के नहीं बोलना। ओके सर। क्लियर है? तो मुझे मंडे तक पूरी वेक्टर्स की वर्किंग हो जाना मटेरियल में, तो ही मैं मंडे की क्लास को आऊंगा, नहीं तो मंडे क्लास गायब। ओके सर। बाय बेटा। तो अब अपन क्या करना, सैन का ऑडियो एल्बम